Hello students. In the previous class, we we discussed about momentum, right? Today we're going to discuss about a new topic, impulse and third law of motion. So, talking about momentum, and that has got an effect, right? Which is force, and that is needed to stop any moving body. So it is a common experience that a smaller force takes more time to stop the body, whereas a bigger force does the same in lesser time. So this observation gave us a new concept, new quantity, which is called impulse, that is force into time. So it is represented as capital letter I. So impulse is force into time. So SI unit will be Newton second. Right? So from Newton's second law of motion, you can see force is equal to P2 minus P1 by T. Right? So when you shift this T towards LHS, you get F into T equal to P2 minus P1. What is P2 minus P1? Change in momentum. Okay, so this relation is called impulse equation or momentum impulse theorem. And there are various applications in our daily life. Let's see some applications. So talking about, you can see the first image, catching the ball by a cricketer. Right. So while catching a fast moving cricket ball, the player moves his hand backward after catching the ball. You might have observed this even while you're playing, right? So by moving his hand, the cricketer increases the time for ball to reach, right? So as a result, he has to apply a small force on the ball. In reaction, the ball also applies lesser force and on the hands of the player, and it is safe from injury. Correct? Similarly, when a passenger is jumping down of a moving train or somebody's climbing the moving bus, in that case, a passenger sitting in a moving train or a bus has momentum, right? So when he jumps down and stands on the platform or road, his momentum becomes zero. If he jumps suddenly from the moving bus and tries to stand on his feet, his body will fall forward due to inertia of motion and he'll get injured, right? So that's the reason why he or she is advised to run over some distance on the platform or road along with the train or bus. This will slow down rate of change of momentum and lesser force will be involved. Okay. So similarly, if I talk about more application like springs in vehicles, that is fit so that the hardness of the shock is reduced. Similarly in the seats, so that it reduces the hardness. When we sit on them, all of a sudden the seats are compressed. So the compression increases the duration of us coming to the rest. So the reaction of force of seats becomes negligible. Similarly, athletes are advised to come to stop slowly after finishing a fast race. Okay, so these are some examples of impulses that we see in daily life. Okay, now let's go to Newton's third law of motion. What is Newton's third law of motion now? See, when a force is applied to stop a moving body, we experience some force from the body being stopped, right? जिसको हम रोकने जाते हैं वही उससे हम भी एक्सपीरियंस करते हैं कुछ फोर्स, बराबर? सो व्हेन अ क्रिकेटर यूज्ड हिज हैंड्स टू स्टॉप अ मूविंग बॉल, एक एग्जांपल लिया, तो हिज हैंड्स आल्सो एक्सपीरियंस सम फोर्स फ्रॉम द बॉल एंड समटाइम्स द फोर्स इज अनबेरेबल, बहुत दर्द होता है, राइट? व्हेन वी कैच. So when we jump on a cemented road from some height, our feet gets injured by the impact of road. Barabar. So these examples, what do we observe in these examples? Whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body. पहला बॉडी अगर कुछ फोर्स सेकेंड बॉडी पे अप्लाई कर रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वो सेकेंड बॉडी फर्स्ट पे भी अप्लाई करता है. सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड बॉडी इज कॉल्ड एक्शन. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी, उसको रिएक्शन कहते हैं. पहला बॉडी जो सेकेंड बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करता है वो हो गया एक्शन, तो उसके बदले में सेकेंड बॉडी कुछ वापस कर रहा है,
राइट, फोर्स एक्सर्टेड जो है वो वापस कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन। ठीक है, सो ये लॉ कहता क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, वो बात अलग है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। समझ गए, स्टेटमेंट क्या है, एक रिएक्शन होगा, एक एक्शन होगा और उसका एक रिएक्शन होगा, तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज द स्टेटमेंट। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे जो डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं। अभी जैसे इफ आई टॉक अबाउट दिस, एक्शन एंड रिएक्शन दिख रहा है आपको। वॉकिंग, सॉरी, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन फर्स्ट, वॉकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दिस वुमन पुशेस द अर्थ बिहाइंड फ्रॉम द फुट। ठीक है, पुश कर रहा है, तो ऐसे में क्या हो गया, वो एक्शन हो गया। और अर्थ क्या करता है, पुशेस दिस वुमन फॉरवर्ड, तो ये हो गया रिएक्शन, जिसके वजह से द वुमन इज वॉकिंग। ओके, सिमिलरली टॉकिंग अबाउट फ्लाइट ऑफ जेट और रॉकेट, क्या होता है, द बर्न गैसेस जो होते हैं वो एग्जॉस्टेड होते हैं फ्रॉम बिहाइंड द हाई स्पीड, गिविंग द गैसेस अ मोमेंटम, एक एक्शन होता है। सो एग्जॉस्टेड गैसेस क्या करते हैं, इम्पार्ट करता है जेट या रॉकेट को टू फॉर अ फॉरवर्ड मोमेंटम, जो रिएक्शन हो गया, और जेट और या रॉकेट जो है वो मूव कर लेते हैं। समझ गए, सो बेसिकली अभी मॉडर्न जेट एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, तो हॉट गैसेस जो होते हैं ऑब्टेन्ड बाय रैपिड बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट ऑफ अ जेट थ्रू अ नोजल होता है उसमें। ठीक है, एक बैक एंड में ऑफ एयरक्राफ्ट, जिसके वजह से वो हाई स्पीड एक्वायर करता है। सो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ द बैकवर्ड गोइंग गैसेस पुशेस द एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड एट ग्रेट स्पीड। इसी चीज को अभी देखो एक बलून के थ्रू भी मैं समझा सकती हूँ। इफ अ बलून फिल्ड विथ गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर, और उसका जो एंड पार्ट है, जो माउथ है, इफ यू अनटाई इट, द बलून मूव्स वेरी फास्ट। इफ यू अनटाई इट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, द बलून मूव्स वेरी फास्ट टुवर्ड्स द राइट साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है कि बलून जो है फ्लाइज ऑफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द एस्केपिंग एयर। मतलब यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर प्रेजेंट जो है बलून में, जो प्रेजेंट है, वो रशेस टू द लेफ्ट साइड विद अ हाई स्पीड। सो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ द लेफ्ट गोइंग एयर पुशेस द बलून टू द राइट साइड। तो वैसे रॉकेट का भी काम होता है। ठीक है, तो रॉकेट भी किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एक्शन रिएक्शन पे ही वर्क करता है। समझ गए, रॉकेट कैन प्रोपेल इटसेल्फ इवन इन वैक्यूम, लेकिन ये क्योंकि इट डज नॉट रिक्वायर एयर फॉर ऑब्टेनिंग दिस अपलिफ्ट और फॉर बर्निंग इट्स फ्यूल। पर जेट एयरक्राफ्ट की बात अलग है। A jet aircraft cannot fly in the outer space because it needs air to provide an uplift and also to burn its fuel. ठीक है, अब जब बात करेंगे, अभी फर्स्ट इमेज देखो, एक a boy is wearing a skates. He's standing on the roller skates, right? Facing a wall and pushes the wall with his hand. तो इससे क्या होगा, the boy finds himself moving backward. Obviously वो पीछे की तरफ मूव होगा, away from the wall, right? What does it appear like? It appears like as if the wall also pushes the boy away. So actually what is happening, when the boy exerts a force on the wall by pushing it with his hands, then the wall exerts an equal force on the boy in the opposite direction. और क्योंकि the boy is wearing that roller skates, the opposite force exerted by the wall makes him move backwards. ठीक है, so the boy on the skates is exerting force on the wall towards left. मान लेते लेफ्ट साइड, तो वॉल क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा एक इक्वल फोर्स ऑन द बॉय टुवर्ड्स राइट। समझ गए, तो एवरीवेयर यू विल सी देयर इज एन एक्शन एंड देयर इज अ रिएक्शन। व्हेन वी टॉक अबाउट द गन, अब ये थर्ड इमेज देखो, इट इज अबाउट गन, राइट? व्हाई द गन रिकॉइल्स, होता क्या है इसमें, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, इस इमेज में when the bullet is fired from the gun, the force sending the bullet towards is equal to the force sending the gun backward. आपने देखा होगा whenever there is a firing happening,
थोड़ा सा डिस्टेंस बैकवर्ड वो गन मूव करता है, राइट? सो वो क्यों होता है? एक तो ड्यू टू हाई मास ऑफ द गन इट मूव्स ओनली अ लिटिल डिस्टेंस बैकवर्ड एंड गिव्स अ बैकवर्ड जर्क या किक टू द शोल्डर ऑफ द गनमैन. तो ये जो गन का मूवमेंट है उसको हम रिकॉइल्ड बोलते हैं. ठीक है? सो दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ. उसी तरह अगर द मैन, फोर्थ इमेज देखो, when the person is trying to get off from the boat, what happens? So when a man jumps out of a boat to the bank of the river, the boat moves backward, away from him, पीछे की तरफ, है ना? So this is due to the fact that the man presses the boat with his foot, ठीक है, in the backward direction. The push of the man on the boat क्या हो गया? Action हो गया. और बोट एक्सर्ट करता है इक्वल फोर्स ऑन द मैन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसके वजह से वो मूव करता है आगे. सो दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द बोट ऑन द मैन इज रिएक्शन. सिंस द बोट इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, ठीक है, उसका कोई पोजीशन नहीं होता, तो इट मूव्स बैकवर्ड ड्यू टू द एक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन. समझ गए? सो देयर इज ऑलवेज एन एक्शन एंड रिएक्शन इन्वॉल्व, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग. वही है हमारा थर्ड लॉ. ठीक है, इसी को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे. यू ऑल कैन पॉज दिस एंड गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन पार्ट वंस. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. See, in the second law we know, we saw what momentum is, right? What is momentum? Mass into velocity, product of mass into velocity, correct? So see, the statement given for this, I would say, suppose a speeding truck hits a stationary car, ठीक है, ड्यू टू विच कार ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग. तो कोलिजन में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रक अगर डिक्रीज होता है बट द वेलोसिटी ऑफ कार विल इंक्रीज. ओके, सो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू दिस द मोमेंटम ऑफ द ट्रक डिक्रीजेस, जिसका जो मोमेंटम डिक्रीज होता है, एंड मोमेंटम ऑफ कार क्या होगा? इंक्रीज होगा. देखो, मान लेते हैं एक स्पीडिंग ट्रक है, जो फास्ट मूविंग ट्रक है, वो एक स्टेशनरी कार को हिट करता है, जिसकी वजह से कार ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग. तो जब ये कोलिजन होता है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक क्या होगा? डिक्रीज होगा, और वेलोसिटी ऑफ कार क्या होगा? इंक्रीज होगा. सो ड्यू टू दिस मोमेंटम ऑफ ट्रक डिक्रीजेस एंड द मोमेंटम ऑफ कार क्या होगा? इंक्रीज होगा. सो इंक्रीज इन मोमेंटम ऑफ कार इज इक्वल टू द डिक्रीज इन मोमेंटम ऑफ ट्रक. तो वहां पे कोई लॉस नहीं हुआ मोमेंटम का इन कोलिजन. ठीक है, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. When two bodies act upon another, the total momentum remains conserved, यानी constant, provided no external force are acting. इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यही स्टेटमेंट को हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं. When two bodies act upon one another, the total momentum remains conserved, provided no external force is acting on them. यही है लॉ. ठीक है, अगर इसी चीज को मैं बाय न्यूटन सेकेंड लॉ से अगर देखा जाए, तो हमें पता, फॉर्मूला तो पता है सेकेंड लॉ का. फोर्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, राइट? सो चेंज इन मोमेंटम विल बी, you can shift this time here, force into time. So if force is 0, change in momentum will become 0. So if the force applied on the body is 0, then its momentum will be conserved. So ये law कहाँ applicable है? हर system में applicable. If अगर कब system, if in the system the momentum of the object present are, अगर system में momentum P1, P2, P3 present है, और एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 सारे मोमेंटम क्या आएगा? आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा. ठीक है, मतलब ये कब होता है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि व्हेनेवर वन बॉडी गेन्स मोमेंटम, देन सम अदर बॉडी मस्ट लूज एन इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम.
यानी मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब ये, ठीक है, यानी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। समझ गए? इसको हम प्रूव कर सकते हैं बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखते हैं कैसे प्रूव होगा। मान लेते हैं कि कंसिडर करो कोई सपोज कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए और बी, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, ठीक है, जिसका मतलब ए का मास कितना होगा m1 हो गया, बी का मास क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा, आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत की वेलोसिटी u1 एंड u2, और ये मानते हैं कि u1 इज ग्रेटर देन u2, कंडीशन ये है कि u1 इज ग्रेटर देन u2। सो ये पहला है बिफोर कोलिजन, फिर ये कोलाइड करेगा, यानी ऑब्जेक्ट ए कोलाइड्स विथ ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, एंड आफ्टर टाइम बोथ मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। तो आफ्टर कोलिजन अब वेलोसिटीज चेंज हो गया कोलिजन के बाद, तो वो मूव कर रहा है v1 में ए बॉल, और बी बॉल मूव कर रहा है विथ फाइनल वेलोसिटी v2, ठीक है। अब बॉल ए में जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, हमें पता है चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम m1 u1 है, मोमेंटम क्या है मास इनटू वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम m1 u1 है और फाइनल मोमेंटम m1 v1 है। सो चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा फाइनल क्या है m1 v1, इनिशियल क्या है m1 u1, सो चेंज इन मोमेंटम हो गया m1 v1 माइनस m1 u1, ठीक है। तो फोर्स ऑन बॉल बी, अब ड्यूरिंग कोलिजन में क्या हो रहा है, ए क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है बी पे, तो बी पे जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है बी ने ए के वजह से, वो कितना होगा F1 होगा, तो वो क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। हमने चेंज इन मोमेंटम क्या देखा, m1 v1 माइनस m1 u1 बाई टी, सो F1 क्या हो गया, ये हो गया फॉर्मूला, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह बॉल बी का चेंज इन मोमेंटम देखो, फाइनल मोमेंटम क्या है बॉल बी का m2 v2, इनिशियल मोमेंटम क्या है m2 u2, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया m2 v2 माइनस m2 u2, सो F2 यानी फोर्स ऑन बॉल ए यानी ये बाय बॉल बी कितना होगा, F2 कितना होगा m2 v2 माइनस m2, ये u2 आना चाहिए, दिस इज u नॉट v चिल्ड्रन, दिस विल बी u2, ओके, दिस विल बी u2, ये u2 होगा, ठीक है। सो m2 v2 माइनस m2 u2 बाय t। सो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें पता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रिएक्ट करेगा, तो जो बॉल ए बी पे अप्लाई कर रहा था, ठीक है, F1 विल बी इक्वल टू माइनस F2, F2 क्या होगा, बॉल बी जो ए पे रिएक्ट कर रहा था, राइट, सो वो क्या हो गया F1 इक्वल टू माइनस F2, इक्वल एंड अपोजिट, दैट्स व्हाई वी हैव नेगेटिव, equal and opposite, so you have to take negative sign, opposite direction. So m1 v1, substitute the value of f1, substitute the value of f2, so m1 v1 minus m1 u1 by t equal to minus m2 v2, substitute the values, we have just substituted, open the bracket, you will get this, minus it is, so when you open this will become plus, and then just shift, keep all the initial velocity together, keep all final velocities together, so you'll get this equation, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. So what is m1 u1 m2 u2, all are initial momentum, m1 v1 m2 v2 क्या हो गया final momentum, so इससे क्या प्रूव हो गया, initial momentum is equal to final momentum, यानी यहाँ पे क्या हो गया कि whenever one body gains momentum then some other body must lose an equal amount of momentum, यानी momentum is never created nor destroyed, ये प्रूव हो गया बाय थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट से, समझ गए। अब इसका सिंपल एग्जांपल है फ्लाइट ऑफ जेट या रॉकेट, ये हमने पहले भी अभी जस्ट इसके लिए डिस्कस किया था, राइट, थर्ड लॉ के लिए डिस्कस किया था हमने, है ना। सो हमने उसमें क्या देखा था, उसी को डिस्क्राइब किया हुआ है, क्या देखा था कि अभी जैसे हमने वो बलून का देखा था, इफ इन्फ्लेटेड बलून इज रिलीज विद इट्स माउथ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा, इट विल मूव अपवर्ड रॉकेट की तरफ, है ना। सो एयर रशेज आउट ऑफ द बलून इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ डाउनवर्ड गोइंग एयर पुशेस द बलून अपवर्ड, बराबर। तो वैसे ही है जेट और रॉकेट को उसी तरह से एक्सप्लेन किया,
ठीक है, go through this, and if you all have any doubt, please clear.